प्रणाम बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? सब ठीक है ना? चलो आज हम क्या करेंगे? हाथी चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. टुडे वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 19 हाथी. Yesterday we did the reading, we did the marking of the parts of Hathi's body, बड़े कान, सूंड, दांत, ये सब हमने पिक्चर में हमने मार्क किया था ना. Today we are going to do meanings and question answers of the same chapter. Okay, we will do page number 122 and 123. So get ready. First you will just watch, or if you want to write together with me, you can write, or else because meanings and all it will take time, you need to pause the video and then copy the meanings. Okay, if you are able to write together with me neatly, you can write. Shall we begin? Chalo, get ready with your pencil and the worksheet. Make sure that you are doing your work very neatly. सबसे पहला question है अर्थ. अर्थ माने meanings. Every video I am explaining so that you remember what it is. अर्थ माने क्या है? Meanings. पहला फर्स्ट वन क्या है? बोलो फर्स्ट वर्ड क्या है? विशाल. पढ़ो क्या है? विशाल. विशाल का मीनिंग कौन बता सकता है? जरा जोर से बोल के देखो. बोलो क्या लिखना है? विशाल. विशाल का मीनिंग है क्या है? विशाल. ये थोड़ा डार्क कलर लाइट कलर ले लेते हैं. विशाल लिखते हैं. नंबर 1 विशाल माने यस ह्यूज बिग. करेक्ट. विशाल. विशाल. This is printed already in your worksheet, so you need to write the meaning as huge. Huge, very big. Huge means very big. Vishal, huge. H-U-G-E. Finish writing. H-U-G-E. अब लिखो second one. सेकेंड वन है जानवर. जानवर. दिस इज प्रिंटेड ऑलरेडी. इसका मीनिंग क्या है? एनिमल. लेट अस राइट एनिमल. A-N-I. एनी. M-A-L. एनिमल. A-N-I-M-A-L. एनिमल लिखा. चलो अभी तीसरा वर्ड देखते हैं क्या है? सूंड. 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 सूंड माने क्या होता है? द ट्रंक ऑफ द एनिमल. एलिफेंट. ट्रंक. T-R-U-N-K. ट्रंक ऑफ द एलिफेंट इज नोन एज सूंड. ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, द नोज पार्ट इज नोन एज सूंड. नंबर 4 बोलो क्या है? नंबर 4 क्या है? कान. 2 बड़े कान. हाथी के कितने कान हैं? 2 कान है, बड़े बड़े 2 कान. कान माने क्या है? ईयर्स. E-A-R-S. ईयर्स. I hope you could write these words. Huge. H-U-G-E. huge. Then उसके बाद animal. उसके बाद सूंड. trunk. animal spelling क्या है? A-N-I-M-A-L. animal. उसके बाद सूंड. ट्रंक. T-R-U-N-K. ट्रंक. कान. ईयर्स. E-A-R-S. ईयर्स. नंबर 5 देखो क्या है? नंबर 5 क्या है? दांत. दांत क्या होता है? दांत. दांत मने इन दिस चैप्टर इट इज टस्क. T-U-S-K. It looks like T-E. T-U-S-K. Tusk. Okay, actually it is Hindi word here in the chapter. हाथी के 2 बड़े दांत, चमकीले दांत. It is the tusk. Actual meaning is teeth. Okay. ആനക്കൊമ്പില്ലേ, അതിനെയാണ് ഇവിടെ ദാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദിയിൽ രണ്ടും, ചവയ്ക്കാനുള്ള ദാന്തും കഴിക്കാനുള്ള ദാന്തിനെയും ദാന്ത് എന്നാ പറയണ. ഹാത്തിയുടെ പുറമെ കാണുന്ന ഇതിനെയും ദാന്ത് എന്ന് തന്നെ പറയണത്. ഒന്ന് ഓരോ തടി അതും ഇതൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ടും, ഒന്ന് കഴിക്കാനുള്ള പല്ല് അകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ബോത്ത് ആർ നോൺ ആസ് ദാന്ത്. ടസ്ക് ഓഫ് ദി എലിഫന്റ്. ഹാത്തി. ദാന്ത്. ടസ്ക്. ആക്ച്വൽ ഹിന്ദി മീനിങ് ടീത്ത്. രണ്ടും സെയിം തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 6 പൂഞ്ച്. पूंछ. पूंछ. पूंछ मने टेल. वाल. T-A-I-L. टेल.
T-A-I-L, tail. I think you could finish together with me. Very good. Children, be neat, okay? If you are writing it in a hurry, write in the rough book first, then you can copy. Fine. चलो अभी नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज वी स्टार्ट विथ प्रश्नोत्तर. क्या है प्रश्नोत्तर? क्या होता है प्रश्नोत्तर? प्रश्न माने क्वेश्चन, उत्तर माने आंसर. क्वेश्चन आंसर. उत्तर क्या है? क्वेश्चन. उत्तर माने आंसर. प्रश्नोत्तर माने क्वेश्चन आंसर्स. पहला प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न, हाथी कैसा जानवर है? हाथी क्या എങ്ങനെയാണ് हाथी ഇരിക്കുന്നത്? हाउ इज हाथी? हाथी एक विशाल जानवर है. हाउ इज हाथी? हाउ इज हाथी? हाथी is huge. Okay, so we will write the answer. हाथी is huge. How do we write that in Hindi? चलो अभी देखते हैं, थोड़ा सा उसको नीचे लाती हूँ, फिर लिखते हैं आंसर. उत्तर, ओके, उत्तर, उत्तरम, प्रश्नम उत्तर. ओके, ना उत्तर एक, हाथी कैसा? दिस इज योर क्वेश्चन. एंगेनेयुल्लതാണ്. हाउ इज एलिफेंट? हाउ इज एलिफेंट? ओके, now हाथी कैसा जानवर है? So we need to write the answer for कैसा, but before that we need to write the other things. Let us start. हाथी. Now you have to give the answer for कैसा. कैसा? एक विशाल, एक विशाल जानवर है. हाथी is a huge animal. विशाल, huge. एक विशाल. हाथी एक विशाल जानवर. हाथी एक विशाल जानवर है. हाथी एक विशाल जानवर है. बोलो हाथी कैसा जानवर है? आंसर बोलो. हाथी एक विशाल जानवर है. फिर से बोलो, हाथी कैसा जानवर है? हाथी एक विशाल जानवर है. अगेन, हाथी कैसा जानवर है? हाथी एक विशाल जानवर है. आंसर इज क्लियर. Okay, now we will go to the second question. हाथी की सूंड कैसी होती है? How is हाथी सूंड? How is it? How is it? लंबी. Correct. So answer in full sentence. हाथी की सूंड. What you have to write here? कैसी എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? How is it? लंबी होती है. So shall we write the answer? उत्तर दो. चलो लिखते हैं उत्तर दो. उत्तर दो. उत्तर दो क्या है? हाथी की सूंड कैसी होती है? हाथी की सूंड. ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ. സൂണ്ട് തുമ്പിക്കൈ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നല്ല നീളമുള്ളതാണ് അല്ലേ? हाथी की सूंड. सूंड, सूंड. कैसी? in the place of कैसी we have to write लंबी. that is a key question and the answer should be लंबी. लंबी होती है. हाथी की सूंड लंबी होती है. उसके बाद फुल स्टॉप. हाथी की सूंड लंबी होती है. देखो, हाथी की सूंड कैसी होती है? हाथी की सूंड लंबी होती है. बोलो, हाथी की सूंड लंबी होती है. हाथी की सूंड कैसी होती है? डोंट से कैसी, प्लीज से कैसी. हाथी की सूंड कैसी होती है? हाथी की सूंड लंबी होती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ओके, अब थोड़ा सा इसको हम नीचे लाके पढ़ के सुनाते हैं. हाथी के
कितने कान, हाउ मेनी ईयर्स, ओके कान, और एंड कितने दांत, हाउ मेनी टीथ और टस्क होते हैं, हाउ मेनी टस्क एंड टीथ डस एन एलिफेंट हैव, ओके हाउ मेनी टीथ एंड ईयर्स एंड टस्क डस द एलिफेंट हैव, എത്ര ചെവികളും, ഓക്കെ ചെവി ആൻഡ് ടസ്ക് കൊമ്പുകൾ, ഓക്കെ എത്രണ്ണം ഉണ്ട്, ഹാത്തി के कितने, हाउ मेनी, there also कितने, how many कान and how many दांत, okay tell me how many, yes 2 कान और 2 दांत, shall we write the answer, yeah चलो लिखते हैं आंसर, you can start, don't wait for me, okay let us write हाथी, start writing हाथी, हाथी, हाथी എഴുതി കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും, നെക്സ്റ്റ് के, हाथी के हाउ मेनी, दो, हाथी के 2, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, എത്ര കാൻ അല്ലേ, അപ്പൊ ഹാത്തിക്ക് 2 കാൻ, 2 കാൻ അല്ലേ, 2 ചെവി അല്ലേ, 2 കാൻ, और and और 2, how many दांत, 2, I don't have space so I'm going to the next line, 2 हाथी के 2 कान और 2 दांत, the दांत होते हैं, हाथी के 2 कान और 2 दांत होते, दे डोंट फॉरगेट दैट है, फिनिश्ड, हाथी के 2 कान और 2 दांत होते हैं, हाथी के 2 कान और 2 दांत होते हैं, read it several times, you should be able to write the answers yourself, just check the spelling and see what comes after what after you finish your answering the questions, okay just check it, now don't just copy everything given in the video, try to answer the questions yourself and check your answers with the video. Now let us go to question number 4, हाथी कहाँ रहता है, where does हाथी live, L-I-V-E, lived, हाथी lives in the jungle, हाथी कहाँ रहता है, here this is your main question, कहाँ, we have to answer that, where, कहाँ रहता है, where does हाथी live, yes right, हाथी जंगल में रहता है, let us write the answer, उत्तर बोलो 4, उत्तर 4, you can write 4 in English also, 1 2 3 4 in English also, not necessary that you have to write like this in Hindi. लिखो हाथी, हाथी एडियो, कहाँ, एवरीडे, वेयर, जंगल में, इन द जंगल, जंगल में रहता है, हाथी जंगल में रहता है, हाथी lives in the jungle, हाथी lives in the jungle, हाथी कहाँ रहता है, हाथी जंगल में रहता है, shall we read the question answers once again, देखो प्रश्नोत्तर पहला, हाथी कैसा जानवर है, हाथी एक विशाल जानवर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हाथी की सूंड कैसी होती है, बोलो हाथी की सूंड लंबी होती है, उसके बाद क्या है, प्रश्न 3, हाथी के कितने दांत और
कितने कान और दांत होते हैं? हाथी के कितने कान और, एक सेकेंड मेरे बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया है, I'll just bring it down a little bit. हाथी के कितने कान और कितने दांत होते हैं? अब इसका आंसर है हाथी के 2 कान और 2 दांत होते हैं। 2 कान और 2 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो नेक्स्ट है हाथी कहाँ रहता है? हाथी जंगल में रहता है। I hope this video is clear to you. You are able to copy it correctly. हाँ, copy it very neatly. Don't be in a hurry. आराम से देखो और लिखो. Read the chapter several times. You need to read it fluently. Learn the meanings. अर्थ, शब्दार्थ सीखो, वर्ड मीनिंग सीखो, क्वेश्चन प्रश्नोत्तर भी सीखो, बाय हार्ट करो. Learn to write it also. So for today this is enough. Until we meet again, bye bye and take care.